Inhale and exhale slowly and gently. Be aware of your breath. Be aware of the whole body. Relax your whole body, especially your jaws. Just relax your jaws, relax your forehead, relax your shoulders. ये तीन जगह पर सबसे ज्यादा स्टिफनेस रहती है क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहीं पर रहता है. तो योर forehead totally relaxed, your jaws totally relaxed, and your shoulders totally relaxed. Relax your lower abdomen and upper abdomen, your hips, your legs, whole body completely relaxed. Now bring your awareness to your heart center. Visualize a bright light at your heart. Be aware of your crown center. Visualize a bright light at your crown. Let's chant Om 3 times together. Inhale deeply. Om. 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 Om Sehna Bhavatu Sehno Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Just rub your palms together. Keep your palms on your eyes. Feel the warmth. Slowly and gently open your eyes. Atma Namaste everyone. I salute the divinity within each one of you. आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार. बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान. एक मिनट. So yesterday we completed chapter number 4. Let us start with chapter number 5. Now अब जो आगे वाले chapters हैं वो चैप्टर्स में हनुमान जी का डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के साथ क्या कनेक्शन है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे.
ये ना तो मैंने तो नहीं कराई मैम ने। So the first four chapters, they tell us the story about from where Hanuman comes. What is the name? What does his name mean? Part two में है relationship, who he connects with. So chapter 5, 6, 7, 8, 9 and 10. और chapter 11 से लेके chapter 18 तक is part 3, the dimensions how he is worshipped and understood. ठीक है, सो कैसे हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, किन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे, हनुमान चालीसा क्या है, बाहुक क्या है, ये थोड़ा 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 हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। 9 प्लैनेट्स के साथ उनका क्या कनेक्शन है, एवरीथिंग। सो फिफ्थ चैप्टर, अब इनके रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज क्या है। सो फिफ्थ चैप्टर talks about Hanuman, Kal Bhairav and Kashi. These are the three guardians of liberation. So guardians of liberation, right? Of all sacred relationships in Hanuman's cosmic story, none is more powerfully grounded in one single place than his relationship with Kal Bhairav and with the sacred city of Kashi. These three, Hanuman, Kal Bhairav, and Kashi itself, form an inseparable trinity of liberation. The city that is Shiva's own body on earth, the fierce guardian who stand at its threshold, and the golden devotee of Ram who breathes through its every lane, temple, and ghat. To understand any one of these three fully, you must understand all three together. So, Kashi is one place जहां पर कहते हैं कि if a person dies there, तो उसको वैसे ही मोक्ष मिल जाता है। If a person is cremated at Manikarnika Ghat, so he is freed from the cycles of death and birth. However, how many of you have been to Kashi? काशी वाराणसी कौन कौन गया है? Can I have the hands raised? नीतल सोनी, खुशी, रितु बजाज, रितु सिंगल, who else? बीना, शालू। मतलब 25 में से, हम 25 है तो 25 में से 17, 18 have not been there. तो जो काशी गए हैं वो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो नहीं गए हैं उनको आई ट्राई टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, और आई विल सजेस्ट कि प्लान एंड विजिट काशी वंस। हाँ चलिए, हम तो पिछले कब गए थे, हम लोग काशी कब गए थे? अक्टूबर में, लास्ट ईयर। 5-6 तो उनमें से आपने घुमाया है। हाँ, अक्टूबर में हम लोग गए थे। वी वेंट, वी ऑल टुगेदर वेंट। अगर आप लोग चलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बट मेरे साथ जाके घूमना फिरना नहीं रहेगा, मेरे साथ जाके ओनली स्पिरिचुअल ट्रिप। हाँ, आपको शॉपिंग कराएंगे अच्छी सी काशी के बनारसी कपड़ों की। ये देखो खुशी कैसे हंस रही है। हाँ, पिछली बार भी लेके आई थी, इस बार भी लेके आऊंगी। ठीक है, तो बनारसी कपड़े वहां बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए सभी लेडीज खुश हो रही है। सरबजीत देखो कैसे चहक रही है। मैम मेरी मदर इन लॉ गई थी, वो ऑलरेडी ले आई है। अच्छा, नहीं, खुद शॉपिंग करके अलग मजा आता है ना। हाँ ये तो है ही है। सो चलिए, बाकी बातें बाद में, लेकिन
वहां पर कुछ जगह ऐसी हैं जो कि ये बेसिकली काशी itself is a place where you everybody must visit if you are on the spiritual path. And those who are not on the spiritual path, they also must visit to be on the spiritual path. So basically, there is a different energy. There is altogether a different peace and calmness. Though the city is very congested, the city is very like full of traffic and वो सब रहता है, लेकिन उसके बीच में भी एक अलग तरह की शांति और एक अलग तरह की एनर्जी वहां जाके मिलती है. सो देर आर मेनी टेम्पल्स जो कि मस्ट विजिट है. नवंबर में वी आर प्लानिंग फॉर काशी परिक्रमा, दैट इज 88 किलोमीटर्स का वॉक है. वी विल बी कवरिंग इट इन 5 days. सो अगर आप उसमें भी जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. सो काशी इज अ प्लेस वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम Bhagwan Shiv, when he landed on the planet Earth, that was the place where he landed. That is the most ancient city of the world. Most ancient city. और वहां पर वहां की बड़ी सारी स्टोरीज हैं. अभी मैं यहाँ पे बहुत स्टोरीज नहीं बताऊंगी. कोई कभी एक सेशन ओनली काशी पे रख लेंगे. तो लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर, देन काल भैरव मंदिर, केदारनाथ, गौरी केदारनेश्वर एंड ओंकारेश्वर. दीज आर द फ्यू टेम्पल्स जो तो जाने ही चाहिए ना. जो इनके बिना तो वैसे तो बहुत मंदिर है. वहां 10 माँ विद्या का मंदिर है, ललिता जी का मंदिर है, मतलब घाट भी है, प्रॉपर तुलसी घाट है वहां. सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट वहां पर संकट मोचन का मंदिर है. दैट इज द टेम्पल वेयर वेयर जो तुलसीदास जी थे, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, ही मेट हनुमान जी एंड दैट ब्रह्म राक्षस जिन्होंने उनको हनुमान जी का रास्ता बताया था, पता बताया था. हाँ हाँ, आई एम ओके विद इट इफ यू वांट टू कम. मेरा लेकिन ट्रिप होता है, इट इज वेरी सिंपल. बहुत सिंपल रहता है. अगर आप सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअली जाना चाहते हैं, नो 5 स्टार होटल्स. सिंपल होटल में रुकेंगे, अच्छे होटल में रुकेंगे, बट इट विल बी वेरी सिंपल. अगर 10 से कम लोग होते हैं, वी हैव अ गेस्ट हाउस वहां पर, जहाँ पे घर का बना खाना मिलता है. मेरे गुरु भाई का ही वो जगह है. हम लोग पिछली बार जब गए थे, वी ऑल स्टेड देयर, वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर. अच्छा, बहुत अच्छा भोजन मिला था. एंड दैट इज वहां पे रहने का ये है कि दैट इज वेरी नियर टू लाइक सारे घाट एंड मंदिर वगैरह सब नियर बाय है. वो एंड सिर्फ घर का सिंपल खाना नहीं, बहुत स्वादिष्ट वाला सिंपल खाना होता है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट वाला. तो यस. हम लोग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं. सो वी डेफिनेटली वी विल प्लान आफ्टर द सेशन. यू जस्ट गिव योर यू नो आप बताइए कि यू वांट टू गो. एंड हम लोग वहां पे देन वी कैन प्लान, डेफिनेटली वी कैन प्लान एंड वी कैन ऑल गो देयर. वी कैन प्लान परिक्रमा इट कहाँ इन का की ऑक्टोबर. होती है वहां पे? हाँ जी. परिक्रमा आप बता रहे हो, परिक्रमा हाँ, जो ये करते हैं वो परिक्रमा कहाँ की हम होती है? परिक्रमा करते हैं क्योंकि परिक्रमा करके काशी जी की, क्योंकि काशी जी की बात चल रही है तो वी कैन टॉक. काशी जी की परिक्रमा करके लाइक वी कैन एब्सॉर्ब द एनर्जीज ऑफ ऑल द देवतास हु आर स्टेइंग इन काशी. सो वहां पे 5 पड़ाव होते हैं, वहीं पर आपको स्टे करना होता है. सो यू हैव टू कवर दैट पर्टिकुलर अमाउंट. अगर आप लोग वॉक नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो लोग वॉक नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम 1-2 कार्स अरेंज कर दें, सो दे कैन डू परिक्रमा बाय कार. तो अभी जब मैं जाऊंगी, अभी मैं टेस्टिंग के लिए जा रही हूँ, थोड़ा देखने के लिए जा रही हूँ कि कैसे मैनेज करना है वहां पे. तो आई विल बी डूइंग दिस परिक्रमा ऑन बाइक विद अ पर्सन. ई रिक्शा पे भी कर सकते हैं ना, ई रिक्शा भी होती है वहाँ? देखना पड़ेगा, अभी जाके पता करके आऊंगी. अभी आई एम हम्म. गोइंग फॉर द सेम पर्पस इन फ्यू डेज. तो जाके, तो नवंबर में वी आर प्लानिंग फॉर दिस, एंड दिस इज 88 किलोमीटर्स की परिक्रमा, विच वी विल बी कवरिंग इन 5 days. पर 2 दिन पहले जाएंगे, एक दिन, मतलब अराउंड 7 to 8 days का इसका ये ट्रिप बनेगा. तो आप वहां पर भी आ सकते हैं. नहीं तो हम लोग सेपरेटली भी वी कैन प्लान फॉर लाइक सिर्फ दर्शन के लिए 2 या 3 दिन, जैसे हम पिछली बार गए थे. तो ये जो जगह है, ये बहुत पावरफुल है. यहाँ पर यहाँ की स्टोरीज हैं बहुत सारी. जब हम फिर कभी बात करेंगे तो वील टॉक अबाउट दैट. एंड काल भैरव जो हैं,
काशी जी की बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ कि काशी जो दैट इज द अबोर्ड ऑफ शिव। तो वो शिव जी का स्थान था, शिव जी को वो बहुत पसंद थी, शिव जी वहां रहते थे। तो द स्टोरी स्टार्टेड व्हेन शिव जी चॉप्ड द हेड ऑफ ब्रह्मा जी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, बिकॉज जो फिफ्थ हेड ऑफ ब्रह्मा जी था, दैट हैड लॉट ऑफ प्राइड। तो उन्होंने ना उसका प्राइड जो था वो खत्म करने के लिए, वो जो हेड क्या होता है, वो प्राइड को, वो मतलब प्राइड को ही रिप्रेजेंट करता है, या इंटेलिजेंस या प्राइड। तो जो उनका फिफ्थ हेड था वो उनको चॉप कर दिया था विद द नेल ऑफ हिज लिटिल फिंगर। तो लेकिन क्योंकि वो ब्रह्म हत्या थी, तो ब्रह्म हत्या का पाप शिव जी को लग गया था। एंड वो जो हेड था, जो स्कल था ब्रह्मा जी का, वो उनके हाथ से उतर नहीं रहा था। उसका क्या मतलब है कि उसका मतलब ये होता है सिंबॉलिकली कि जो पाप है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारे ऑरा में चलता है। हम जो भी कोई गलत काम करते हैं वो हमारे ऑरा में चलता रहता है। तो जो शिव थे वो जगह जगह भटक रहे थे। तो इन्होंने बोला, विष्णु जी से पूछा कि मैं कैसे इस चीज से पीछा छुड़ाऊं अपना। तो विष्णु भगवान ने कहा, आप पूरे संसार का भ्रमण करो, कहीं एक जगह ऐसी है जहां आप जाओगे, जहां आपको शांति मिलेगी, और जहां आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। एंड देन व्हेन ही रीच काशी, तो अपने आप जो वो जो स्कल था वो हाथ से निकल के वो गंगा जी में चला गया। एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड लिविंग देयर। उसके बाद देयर वाज ऋषि, वो बहुत सारी तपस्या कर रहे थे, और वो सुमेरु पर्वत पे बैठ के तपस्या, इनके इसका सिंबोलिज्म मैं बाद में कभी बताऊंगी आपको, अभी नॉर्मल स्टोरी बता रही हूँ। तो वो सुमेरु पर्वत पे बैठ के जो थे वो तपस्या कर रहे थे। तो शिव जी प्रकट हुए, और उन्होंने शिव जी से जब वरदान मांगा तो ये मांगा कि आप कुछ टाइम के लिए काशी छोड़ के आप मेरे पास सुमेरु पर्वत पे रहिए। अब जब वो काशी छोड़ के चले जाते हैं वहां पर रहने के लिए, तो पीछे से एक राजा होता है, वो यहाँ पर आके यहाँ पर रहने लग जाता है। और वो इसी शर्त पे आता है कि मैं, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, मैं काशी जी को नहीं छोड़ूंगा। अब जब वहां पर सुमेरु पर्वत पर उनका वो खत्म हो जाता है रहने का सिस्टम, तो वो वापस आना चाहते हैं। तो दिस राजा ही से, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैं ये मेरी टेरिटरी हो गई है, अब मैं यहाँ पे आपको नहीं आने दूंगा, शिव जी की एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। तो फिर शिव जी जो हैं वो कभी किसी को भेजते हैं, जैसे कभी वो नारद मुनि को भेजते हैं, तो क्या है, नारद मुनि वहीं पे जाके रह जाते हैं, वापस ही नहीं आते। फिर वो गणेश जी को वो गणेश जी एंड में जाते हैं। फिर वो सप्तऋषियों को भेजते हैं, विष्णु भगवान को भेजते हैं, सब लोग जाते हैं। जो जो जाते रहते हैं वो वहीं पर जाके वहीं के रह जाते हैं, वो वापस ही नहीं आते हैं। तो शिव जी बड़े परेशान होते हैं। फिर शिव जी जो है वो गणेश जी को भेजते हैं। जब वो गणेश जी को वहां भेजते हैं, तो गणेश जी जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत परफेक्ट होते हैं। तो गणेश जी क्या करते हैं, वो उस जो राजा को एस्ट्रोलॉजिकली वो थोड़ा तामझाम करके तो उसको वहां भेजते हैं। दैट इज व्हेन शिव जी अगेन एंटर्स काशी, और फिर कहते हैं अब मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, अब भी नहीं जाऊं। तो तब से अब तक इट इज सेड दैट नेचुरल अबोर्ड जो है उनका, जो नेचुरली जो वहां जहां रहते हैं शिव जी, दैट इज काशी, वहां पे उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस फील होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि काशी के तो कंकर में भी शंकर है। तो दिस इज सेड, ठीक है। तो अब क्या है, हनुमान जी जो थे वहां पर, हमें अभी पता है कि तुलसीदास जी ने वहां पे उनके दर्शन किए। तुलसीदास जी वहां पे राम कथा होती थी, तो वो तुलसीदास जी की कथा सुनने जाते थे। तो हनुमान जी का क्या कनेक्शन है काशी से? हनुमान जी का काल भैरव, अब काल भैरव क्या है? काल भैरव कोतवाल है, प्रोटेक्टर ऑफ काशी। अब काशी क्या कहते हैं? काशी बेसिकली एक ऐसी सिटी है कि जब प्रलय आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट काशी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। काशी एक ऐसी जगह पे बिल्ट है जहां पर कुछ भी हो जाए, काशी कभी भी जो है, वो जियोग्राफिकल उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो प्रलय उस पे नहीं आएगी, काशी जी में कभी बाढ़ नहीं आएगी। तो काल भैरव जो है वो प्रोटेक्टर हैं। काशी कहते हैं मिनिएचर ऑफ प्लेनेट अर्थ। सो वहां आप कहते हैं कि सारी जो एनर्जी है प्लैनेट अर्थ की, वो कॉन्क्रेटाइज की हुई है काशी जी। एंड काल भैरव जो है वो उस काशी के प्रोटेक्टर हैं। इन अ वे सिंबॉलिकली ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। तो वो भी वहां पर रहते हैं, वहां पे उनका मंदिर है। और उनके भी आगे जो एक और भैरव हैं,
वहां पर उनका भी मंदिर है। सो ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, बेसिकली दे आर द पॉइंट्स ऑन प्लैनेट अर्थ जहां पे ऐसे की एनर्जी कॉन्क्रेटाइज्ड है, जहां पे ऐसे की एनर्जी प्रेजेंट है, और वहीं से वो एनर्जी जो है वो सारे यूनिवर्स में जा रही। सो वी विजिटेड अ टेम्पल, वेरी नॉट फेमस टेम्पल, वेरी सिंपल टेम्पल, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहां पे सब लोग गए थे। वहां पर देर आर शिवलिंग, और वो जो शिवलिंग है वहां पर 27 नक्षत्र की एनर्जी कॉन्क्रेटाइज्ड है। वहां पर एक साथ ही छोटा सा, और अगर आप देखोगे ना उन मंदिरों को, तो आपको लगेगा ये इतने पावरफुल मंदिर है, लोगों को पता ही नहीं। व्हाई डोंट पीपल कम देयर? बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन रीच दैट पावरफुल प्लेस। बहुत सारे लोकलाइट्स भी है ना, उनको भी ये मंदिर नहीं पता है। काशी में रहने वाले लोगों को भी ऐसे मंदिर, काफी जो मंदिर हैं उनको नहीं पता है। सो ये मंदिर, वहां पे चारों वेद जो हैं उनके एक शिवलिंग है वेदेश्वर, वहां पर है, और एक नक्षत्रेश्वर जहां पे 27 नक्षत्र की एनर्जीज जो है वो कॉन्क्रेटाइज्ड है। एंड दे ऑल हैव, जो साथ गए थे हम लोग एक साथ, रितु थी, रितु सिंगल थे, खुशी थी, अगर प्रीति वगैरह है, प्रीति थी, हम सब लोगों ने, वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट दोज टेम्पल्स, एंड वेरी डिफरेंट एनर्जीज, बिल्कुल अलग जंगल टाइप, वो जाके पीछे जाके गंगा जी के गए ऐसे घाट पे जिस घाट पे कोई नहीं जाता है। सो ऐसी जगह है वहां पर, और काशी में, और काशी में कहते हैं सारे देवता वास करते हैं। क्यों? क्योंकि किनको भेजा काशी में? शिव जी भगवान ने खुद भेजा था, क्योंकि मेरी जगह बनाओ भाई, मुझे एंट्री चाहिए। पर क्या हुआ? सारे देवता वहीं रह गए। सो आज भी कहते हैं कि वो देवता जो हैं वो वहां पर आज भी उनका वास है, वो आज भी वहां पर रहते हैं। ठीक है। तो हनुमान जी का क्या कनेक्शन है यहाँ पर? क्योंकि तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे काल भैरव। अभी हम सारा पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली, और काशी परिक्रमा हम करते हैं ताकि जितने भी वो एनर्जीज हैं, जितने भी देवता, अब वो देवता काशी में विराजमान है, ये देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में रहते हैं। स्वर्गलोक में रहते हैं ना देवता, हमारे अंदर रहते हैं। ठीक है। स्वर्गलोक कहाँ है? हमारे अंदर ही है। तो जब हम काशी परिक्रमा करते हैं या जब हम ऐसी जगह पे विजिट करते हैं, तो हमारे अंदर के वो जो देवता है वो जागृत हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी हमारे अंदर एक्टिवेट होके हमें उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसलिए ऐसी जगह पे जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर हमारे अंदर की वो जो एनर्जी है जो डोरमेंट है, वहां जाकर वो एक्टिवेट हो जाती। ठीक है। तो इसलिए काशी परिक्रमा का सिग्निफिकेंस है। देन इज हनुमान। Okay, let me read it again. All the sacred relationships in Hanuman's cosmic energy, none is more powerfully grounded in one single place than his relationship with Kal Bhairav and with the sacred city of Kashi. These three, Hanuman, Kal Bhairav, and Kashi itself, form an inseparable trinity of liberation. The city that is Shiva's own body on earth, the fierce guardian who stands at its threshold, and the golden devotee of Ram who breathes through its every lane, temple, and ghat. To understand any of these three fully, you must understand all these three together. Who is Kal Bhairav? To understand the sacred relationship between Hanuman and Kal Bhairav, we must first understand who the Bhairav is, not as a fearsome deity to be placated, but as one of the most profound expressions of the divine consciousness in all Shiva's philosophy. Kal Bhairav is Shiv's in his own most intense, most direct, most uncompromising form. The name breaks down as Kal, that is time, death, and dark. So जो काल है, काल टाइम को भी कहते हैं, काल डेथ को भी कहते हैं, और काल काली ब्लैक डार्कनेस को भी कहते हैं, right? And Bhairav, the terrifying, the awe-inspiring. He is the Lord of time, not the God who merely measures time,
but the God who is time. इसलिए कहते हैं काल भैरव जाने से वक्त बदल जाता है। काल भैरव मंदिर में जाके, who have been to काल भैरव मंदिर? अच्छा, एक बात बताइए, जो जो काशी गए हैं, किनको ऐसा फील हुआ है कि आप अपना एक पार्ट वहीं अभी भी वहीं पर रह गया है? बिल्कुल 100%, अभी भी वही है। जब भी याद करते ना ऐसे लगता है कि वहीं कनेक्ट वही हुए हुए हैं है, हम लोग काल भैरव एक्चुअली। के मंदिर में ही खड़े हैं अभी रूटेड, वी भी। आर रूटेड देयर एक्चुअली। बिकॉज वी आर एक्चुअली रूटेड देयर। क्योंकि जो देवता वहां वास करते हैं, वो देवता हमारे अंदर भी वास करते हैं। तो वी आर एक्चुअली रूटेड। अब जब हम वहां जाते हैं तो हमारी वो जो एनर्जी है, वो जो मेमोरी है, इन अ वे सबका सबकॉन्शियस में, वो बाहर आ जाती है। तो हमें इस तरह से लगता है कि अब मैं काशी से वापस तो आ गई, बट मेरा एक पार्ट काशी में अभी भी है। वो वही देवता हैं जो आपके अंदर वास करते हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसी फीलिंग आती है। सो ही हिमसेल्फ इज टाइम, ही इज द फोर्स। श्वेता जी, हाँ जी। मुझे और कहीं इतनी एनर्जी नहीं फील हुई जितनी मुझे मणिकर्णिका घाट पे हुई। उसका नाम डेफिनेटली लेते मणिकर्णिका घाट तो है ही बहुत पावरफुल। वहां पर आई डोंट नो, अगर अपने मन में डर हो तो बात अलग है, बट वहां पर यू सी द डेड बॉडीज बर्निंग। वहां पर आपको डर नहीं लगता है, वहां पर आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन और पीस फील होता है। डर तो नहीं लग रहा था, बट वो जैसे अभी भी जैसे मणिकर्णिका का नाम लिया, घाट का नाम लिया, घाट को देखते ही, उसके बारे में सुनते ही मेरे गूजबम्स खड़े हो जाते, पता नहीं क्यों। हाँ, हाँ। तो ऐसा ही होता है, बिकॉज वहां की एनर्जी ऐसी है, और हम लोग क्योंकि सब लोग स्पिरिचुअल पाथ पे है ही हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोग वो ये गूज बम्स क्यों आते हैं? बिकॉज हम लोग वो एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। सो सटल लेवल पे हमारी एनर्जी जो है वो हमें फील हो रही है। सो दैट इज व्हाई इट हैपेंस। सो वहां की एनर्जी है ही ऐसी। आप जब भी मणिकर्णिका घाट जाओ, वहां पर एक मंदिर है, थोड़ा स्टेप्स नीचे उतर के एक मंदिर है, नीचे शिवलिंग है, वहां पर बैठने की जगह है। आप वहां बैठिए एंड वहां बैठ के कुछ मेडिटेट कीजिए। अ, इतने डबल मतलब जबरदस्त वहां पर एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतना वहां पर पावरफुल एनर्जी है। अगर आप वैसे पीछे थोड़ा सा साइड पे आके, गंगा जी भी हैं वहां पर, मंदिर भी है, वहां पर आके बैठिए। वहां पर कुछ देर बैठ के आप जस्ट जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट, and you will feel something happening, you will see something, you will experience, definitely you will have a spiritual experience there, because that is our own reality, that is our own self। वो हमारा शिव का, वो शिव शिव कहाँ है? हमारे अंदर, हम भी तो शिव ही है ना। तो वो हमारी अपनी जगह है, हमारा अपना, सबका हमारा अपना घर है वो, इसलिए हम लोगों को वहां पर ऐसे की फीलिंग आती है। जब हम लोग गए थे तो दिवाली से कुछ दिन पहले गए थे, तो बहुत कम रश था, बहुत कम रश था। और हमारा वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स वो गुम गई वहां पर। तो वो भी कह लो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज था, वो गुम गई। सो दे गॉट लॉट ऑफ टाइम टू सिट देयर। और वहां पर बिल्कुल भी रश नहीं था, आप बैठो और कितनी बारी दर्शन कर लो, और इट वाज रियली नाइस। सो और जाना भी तभी चाहिए जब वहां पर रश नहीं हो। तो जो ये धनतेरस का दिन होता है, तब बीच में ही काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, वो खुलता है, उस दिन रश शुरू हो जाता है। सो हम लोग जब गए थे तो हम लोग उससे एक दिन पहले वापस आ गए थे। तो जब हम वापस आए, उससे नेक्स्ट डे रश होना शुरू हुआ था। तो तब बिल्कुल खाली था, कोई नहीं जाता है वहां पर। और इस बार भी इफ पॉसिबल हम लोग उन्हीं दिनों में ही प्लान करेंगे जाने का। इस बार दिवाली के बाद में चल पड़ो प्लीज। दिवाली के बाद फिर रश हो जाएगा, वैसे भी कुछ ना कुछ फिर प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं, फिर काशी परिक्रमा वैसे ही है। तो वील सी कब प्लान करना है, नहीं तो आप काशी परिक्रमा में चलना। ठीक है। ओके। He is the dark face of Shiv that the comfortable mind does not wish to encounter, but which the sincere seeker must ultimately meet. In the Shiv Agams and Mahakal Samhita, Bhairav is described as having arisen from Shiv's third eye.
the eye of wisdom that sees through and all illusion, all pretension, and all fear. When Brahma's fifth head spoke arrogantly, claiming to be greater than Shiva, Shiva's wrath manifested as Bhairav, who severed that head with a single gesture. This act is deeply symbolic. Bhairav is the force that destroys the arrogance of ego, the false identity that dares claim equality with or superiority to the absolute. Kal Bhairav is the Kotwal, the chief guardian, the magistrate of the sacred city of Varanasi. Every soul that dies in Kashi is said to receive Tarak mantra from Shiv himself through Bhairav, ensuring liberation. He guards the crossing between life and death, between time and eternity. Now, what is Tarak mantra? Tarak mantra is Ram. Om Ram Ramaya Namaha. That is the Tarak mantra. Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. This is one of the verses from Ram Raksha Stotra. Again, very powerful mantra. So, this is a secret which I am disclosing today to all of you. जब भी आप शिव जी की साधना करते हैं, जब भी हम ओम नमः शिवाय करते हैं, तो अगर आप संपुट लगा के करते हैं, ओम राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः. So Ram Ramaya Namaha, then Shiva mantra, Om Namah Shivaya, then Om Ram Ramaya Namaha. That becomes very, very powerful. This is the mantra to get very close to Shiv. राम मंत्र है, बट अब अब शिव भगवान किसका मंत्र जाप करते हैं? राम राम करते हैं. तो जब शिव की साधना में आप राम का मंत्र ऐड कर देंगे, तो that will be very, very powerful. So this is any Ram mantra. Om Ram Ramaya Namaha, Om Namah Shivaya, Om Ram Ramaya Namaha. This is Samput. Ram Ramaya Namaha is Samput. शिव ओम नमः शिवाय बीच में आ जाएगा. उसके बाद फिर बोलेंगे ओम राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः, ओम नमः शिवाय. If you do this, you'll feel the difference. So ये जो संपुट लगाते हैं हम, ये पावर को बढ़ाते हैं. बिकॉज दिस तारक मंत्र का क्या मतलब है? जो तारने वाला मंत्र है. ठीक है, तो ये जो मंत्र है दैट इज वेरी वेरी पावरफुल. और यही मंत्र जो है वो क्या बोल रहा है, वो क्या लिखा है यहाँ पर कि Kal Bhairav is the Kotwal, the chief guardian, the magistrate of the sacred city of Varanasi, that is Kashi. Every soul that dies in Kashi is said to receive Tarak mantra from Shiva himself through Bhairav, ensuring liberation. So शिवजी कौन सा तारक मंत्र? शिवजी ये नहीं कहते हैं तुम ओम नमः शिवाय जाप करो. शिवजी कहते हैं तुम राम नाम का जाप करो, क्योंकि वो खुद भी राम नाम का जाप कर रहे हैं. कल हमने क्या पढ़ा था कि शिव जो हैं वो राम के हृदय में रहते हैं, और राम कहाँ रहते हैं? शिव के हृदय में रहते हैं. तो शिव जो हैं वो क्या कहते हैं कि राम मंत्र का जाप करो, और राम क्या कहते हैं? वो शिवलिंग की स्थापना करके वहां पर पूजन करते हैं, एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे की साधना करते हैं. तो जब हम संपुट लगा के इस तरह से करते हैं, दैट मेक्स इट वेरी वेरी पावरफुल. जैसे मैंने कल भी बताया था कि राम एंड शिव जब एक हो जाते हैं, जब हम उनको एक कर देते हैं, इससे पावरफुल और कुछ भी नहीं है. जब हमारा विल एस्पेक्ट और जब हमारा लव एस्पेक्ट एक हो जाता है, जब हम अपनी विल को विद लव पूरा करते हैं और लव को विद विल पूरा करते हैं, दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी पावरफुल मंत्र. हाँ जी रेणु जी पूछिए. अनम्यूट कीजिए.
Can you repeat the mantra, this Yeah, Sampat sure. mantra once again, please? Sure. Hanji. This is Om Ram Ramaya Namaha. Ji haan. Om Namah Shivaya. Right. Om Ram Ramaya Namaha. Right. Thank you. And then keep repeating it. Okay. बिल्कुल. मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, लिख के डाल दूंगी. So just chant it and see the power. हाँ जी नीति जी पूछिए. नीति अनम्यूट करो और हाँ जी। पूछो. मैम इसको जापमाला पे करें या ऐसे भी कर सकते हैं? ऐसे ही करो. करते रहो कंटिन्यूअसली. आजकल शिव, जितनी देर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो ना, हाँ डू जी, दिस मंत्र. शिव पे जल, देखिए शिव जी कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. ठीक है मैम, थैंक यू। आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, यही मंत्र चांट करते रहिए. आप शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, यही मंत्र चांट करते रहिए. आप जब भी शिव जी का, आजकल सावन का मास चल रहा है, जितना आप शिव की साधना करेंगे उतना अच्छा है. ये मंत्र का चांट करके करिए, यू विल फील द डिफरेंस. ओके मैम। Kal Bhairav is not the god of death in the sense of ending. He is the god of transformation that death reveals. He guards the threshold of eternity. To know him is to become fearless of time itself. जब हम काल भैरव की साधना करते हैं ना, तो जो डेथ, सबको डेथ का डर रहता है, सबको मरने से डर लगता है. बट काल भैरव क्या कहते हैं कि मरने के बाद ही तो असली जिंदगी शुरू हो रही है, ये तो माया है. तो वो उस थ्रेशोल्ड पे बैठे हैं. तो वेन वी डू भैरव साधना, जो लोग भैरव साधना कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जब से आपने भैरव साधना करनी शुरू की है, क्या आपके फियर्स कम हुए हैं? ऑल ऑफ दोज हु आर डूइंग भैरव साधना, प्लीज टेल मी. हाँ जी। और बाकी लोग? ऋतु सिंगल भी यस, हाँ जी। हाँ जी। ऋतु बजाज यस, कविता दुग्गल यस. सो जब भी हम भैरव की साधना करते हैं, हमारे सारे के सारे फियर्स खत्म होने लग जाते हैं. फियर ऑफ डेथ, हम आ जाओ, जिसने आना देख लेंगे, कोई बात. प्रॉब्लम है, आ जा, कोई बात नहीं, भैरव बाबा है हमारे पास, हम भैरव साधना करेंगे. वी विल फेस द ट्रुथ. कैसे करते हैं उसकी साधना, अलग प्रोसेस होता है उसका. मैं ये ना 2 दिन से महसूस कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं इतने अननोन एरिया में बिल्कुल डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में बैठी हूँ और मुझे 1% कुछ नहीं महसूस होता पूरा दिन. और मैं ये नोटिस कर पा रही थी कि ये हाँ, डिफरेंस है. डिफरेंस है. और हमारा अननोन फियर्स जो है ना, हमारे अंदर जो फियर्स रहते हैं, जो पास्ट लाइफ से हमारे अंदर आ रहे हैं, वो एकदम से खत्म होने शुरू हो जाते हैं. ठीक? अगर अगर आपने प्रॉपर साधना नहीं भी करनी है ना, अगर आप जैसे अभी आप साधना नहीं भी सीखी है आपने, या आप अभी आपने वो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो ओम भैरवाय नमः, इसका भी आप मंत्र चांट करेंगे, तो आपके फियर्स जो हैं वो धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाएंगे. सो भैरव जो है, दैट इज डिपिक्टेड एज वेरी, नॉर्मली जो है वो उनको फियर्स फॉर्म में दिखाया जाता है. तो फियर्स फॉर्म वो हमारे लिए नहीं है, फियर्स फॉर्म वो फियर्स के लिए है. एक बार भैरव साधना वाले जरा भैरव बाबा की पिक्चर डाल देना ग्रुप में, इस वाले में. ये जो पिक्चर डालेंगे, ये काल भैरव जो मंदिर है यहाँ पर काशी में, ये वहां की पिक्चर है. तो दिस टाइम व्हेन वी वेंट, ट्वाइस वी गॉट अ चांस टू गो इनसाइड द गर्भगृह. और रात की जो शयन आरती होती है, वी विटनेस दैट आरती एंड वी विटनेस द पावर. And I have no words to explain the power of those moments when we were inside the Garbhagriha. So we went there twice inside the mandir, pura andar. So we were fortunate enough to get this opportunity. We are grateful for that.
सो फियर्स जो उनकी एक बताई जाती है, वो इट्स नॉट द अपेयरेंस फियर्स, इसलिए नहीं है कि वो हम उनसे डरे, बट वो जो फियर्स को डराना है, वो उसके लिए फियर्स उनकी एनर्जी दिखाई जाती है। वो दिखाया जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उनको डरा रहे हैं, वो हमें नहीं डरा रहे। कोई भी डेटी हमें डराने के लिए नहीं बनाया भगवान ने, कोई भी एनर्जी हमें डराने के लिए भगवान ने नहीं बनाई है। ये हमारे फियर्स हैं, जो हमें फियर्स रूप देख के, उनका स्वरूप देख के हम लोगों को डर लगता है। ठीक है। द शेयर्ड नेचर, both are forms of Shiva. Connection between Hanuman and Kal Bhairav begins at the most fundamental level. They are both direct manifestations of Lord Shiv. Hanuman is the Rudra avatar of Shiv. Shiv is the form of pure devotion. Shiva in the form of pure devotion and selfless service. Kal Bhairav is Shiv in the form of time, dissolution, and terror of truth. These two faces are the same consciousness. In the Shiv tradition, Tantric tradition, the various forms of Bhairav, number 64, collectively called 64 Bhairav. अब कितनी योगिनियां हैं देवी की? काली की योगिनियां कितनी है? 64 योगिनियां। हम 10वां विद्या में पढ़ते ना, 64 योगिनियां हैं। और भैरव कितने हैं? 64 भैरव हैं। तो जो जितनी भी योगिनियां हैं, उनका काउंटर पार्ट जो है, जो मेल काउंटर पार्ट जो है उनका जो शिवा पार्ट है, दैट इज 64 भैरव। तो 64 योगिनियों के 64 भैरव भी हैं। और एक बात और, जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ जितने भी हमारे हैं, सबके भी अपने अपने भैरव हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर शक्तिपीठ के 4 भैरव होते हैं, चारों डायरेक्शन से उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। और कुछ कहते हैं कि हर शक्तिपीठ का एक भैरव होता है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, भैरव इज द प्रोटेक्टर और देर आर 4 भैरव्स। लेकिन जो एक ही भैरव आपको दिख रहे हैं, दैट इज द ओनली विजिबल भैरव। बाकी के जो भैरव हैं वो गुप्त भैरव होते हैं। बहुत सारे हमारे इंडिया में मीन जहां जहां पे भी शक्ति पीठ कहते हैं, शक्ति जो पीठ है वो एक्चुअली दे आर 108 नॉट 51। बट जो बाकी के जो शक्तिपीठ हैं, दे आर सो पावरफुल, सो पावरफुल कि एज ह्यूमंस हम लोग वहां पर उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को उन शक्तिपीठ का एक्सेस नहीं है, वो गुप्त हैं। ठीक है। तो जो भैरव हैं बेसिकली वो भी 64 बोले जाते हैं। तो 64 कैसे हो गए? 8 अष्ट भैरव बोलते हैं। तो हर जो एनर्जी होती है वो अष्ट जो है वो इंटू मतलब उसका स्क्वायर कर लेता है। सो अष्ट भैरव क्योंकि वो मल्टीपल डायमेंशंस में होते हैं, तो वो 8 into 8 देर आर 64। Each of the 64 Bhairavs is paired with one of the 64 yoginis, the fierce feminine powers of the Tantric tradition. Together, the Bhairavas and yoginis form the complete guardian network of sacred consciousness. Hanuman, as a manifestation of Shiv, shares in this guardianship. In many temple traditions, Hanuman is considered a Bhairav himself, specifically called Veer Bhairav, the heroic form of Bhairav, the Veer form of Bhairav. Okay, called Veer Bhairav, the heroic form of Bhairav who protects through strength and devotion rather than through a terror. This identification is not a later addition. The Rudra Yamal Tantra and the Bhairav Agamas both contain passages describing Hanuman as a manifestation of Bhairav's protective power channeled through Ram Bhakti. When Bhairav protects through the terror of his form, making evil flee in fear, Hanuman protects through the radiance of the devotion, making evil unable to approach what is touched by Ram's grace. तभी क्या कहते हैं हम उनको? संकट मोचन कहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्या है? वो खुद एक फियर्स फॉर्म है, वो खुद एक भैरव की फॉर्म है, वो खुद शिवर्स फॉर्म है। बट
presented in a different way, and he has come to help Ram and to help us. Okay, हमें उनका मोटिव पता है क्या है. Then is Kal Bhairav as the destroyer of fear, Hanuman as the giver of courage. अब इनमें देखो कितना उनका जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. भैरव क्या करते हैं? भैरव फियर को खत्म करते हैं, और हनुमान उस फियर को खत्म करने के लिए हमें करेज देते हैं. ठीक है. तो जब आप कोई भी साधना करते हैं, उसमें अगर हम भैरव मंत्र, हनुमान मंत्र लगा देते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा वो साधना को पावरफुल बना देते हैं. क्योंकि जब भी हम कोई साधना करते हैं, साधना करेंगे तो हमारे हमें हमारे कहते हैं ना, जो साधना करते हैं उनकी लाइफ में और चैलेंजेस आते हैं. जो पूजा पाठ करते हैं, जितना पूजा पाठ करते हैं उनकी लाइफ में उतने ज्यादा और चैलेंजेस आते हैं. ठीक है. वो क्यों होता है? वो चैलेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जब हम कोई मेडिटेशंस करते हैं, हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हम प्राणिक हीलिंग में भी बोलते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे कर्मास फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं. तो वो हमारे लाइफ के चैलेंजेस क्या होते हैं? वो हमारे कर्मास न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं. अब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी हीलिंग्स करते हैं, कई बार हम अपनी साइकोथेरेपी करते हैं. अब अगर साधना हम कर रहे हैं, अगर हम भैरव मंत्र करते हैं, हनुमान जी का मंत्र करते हैं, तो भैरव क्या करते हैं? वो फियर्स को खत्म कर देते हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देते हैं, और हनुमान जी हमें करेज देते हैं कि हम उन फियर्स को फेस कर सकें. जो भी थोड़े बहुत रह जाते हैं उनको फेस करने का, या उस चीज को हम लोगों को मैनेज करने का करेज जो है, वो बल बुद्धि विद्या, वो कौन देता है? वो हनुमान जी देते हैं. तो आई थिंक एक ये पैराग्राफ पढ़ लेता है. ठीक काल भैरव एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर, हनुमान एज द गिवर ऑफ करेज. ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे. वन ऑफ द काल भैरव प्राइमरी फंक्शन इज अभय, द रिमूवल ऑफ ऑल द फियर. अभय, अभय मतलब जो भय को खत्म करते हैं. This seems paradoxical. How does the most terrifying form of God remove fear? The answer is one of the deepest in all the spiritual philosophy. Fear exists because we believe we can lose what we have: our body, our beloved ones, our identity, our life. All fear is ultimately the fear of death, of annihilation, of the loss of the self. Kal Bhairav confronts the devotee with the face of death directly and unflinchingly. In the confrontation, if the devotee does not run but instead bows, a great transformation occurs. They realize that what they thought was themselves, the body, the personality, the accumulated identity, is not actually themselves. The real self, the Atman, cannot be destroyed, cannot be devoured by time, cannot be harmed by death. Bhairav reveals this by being the face of the death and daring you to remain present. Hanuman's relationship to this is the devotional parallel. Hanuman removes fear not by confronting the devotee with death, but by filling the devotee's heart so completely with Ram's presence that there is no room left for fear. Hanuman Chalisa declares, Bhoot Pishach nikat nahi aave, Mahabir jab naam sunave. No ghost, demon, or fearful force can come near when the name of Mahabir, Hanuman, is uttered. This protection is total, because Hanuman's presence invokes Ram's presence, and in Ram's presence, the presence of the absolute, no fear can exist. Kal Bhairav burns away the fears through confrontation. Hanuman dissolves fear through love and divine presence. They are complementary medicines for the same disease, the disease of spiritual fear that keeps the soul from full liberation. ठीक है. अब हमें समझ आएगी कि काल भैरव हमारे लिए क्या करते हैं, हनुमान जी कैसे एक दूसरे को ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे दोनों की साधना को अगर हम अपनी साधना में ऐड करें तो हमारी साधना कैसे पावरफुल हो जाती है.
हमारी लाइफ में जितने चैलेंजेस आएंगे, क्या करेंगे, काल भैरव उनसे कन्फ्रंट करने की पावर देंगे, मतलब कन्फ्रंट करने के लिए हेल्प करेंगे, और हनुमान जी हमें करेज देंगे कि हाँ, हम वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम उसको, आधे तो वो चॉप ऑफ ही कर देते हैं, आधे तो जो काल भैरव हैं, काल भैरव की साधना से वो खत्म ही हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, जो थोड़े बहुत मैनिफेस्ट होते हैं, उसमें हमारे करेज आ जाता है। तो साधना में हनुमान जी, इसीलिए आप देखोगे कि जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर काल भैरव भी, वहां भैरव बाबा उनके भैरव भी होते हैं, मंदिर के बाहर हनुमान जी भी होते हैं। ये सब अगर आप देखोगे, अब अगर हमारा चिंतपूर्णी को देखते हैं हम, तो चिंतपूर्णी के भी 4 भैरव हैं। तो वन ऑफ द भैरव इज, जो पंजाब में रहते हैं उनके लिए बता रही हूँ, वन ऑफ द भैरव इज शिवबाड़ी में जो हनुमान, जो शिवलिंग है, जो मंदिर है शिवबाड़ी में, जो द्रोणाचार्य ने जहां जहां तपस्या की थी, सो दैट मंदिर इज बेसिकली, वो जो शिवलिंग है उसको शिव जी ने उसको खुद स्थापित किया हुआ है। बिकॉज चिंतपूर्णी जो है दैट इज अ शक्ति पीठ। और देर आर 4, क्योंकि अब शिव जी को बाकी जाना था, लेकिन वहां देवी के बॉडी पार्ट्स पड़े हैं, तो बॉडी पार्ट्स को चारों डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करें, तो वो वहां पर भैरव स्थापित किए हुए हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज हम इतना ही करते हैं। कल हम ट्यूसडे सैटरडे एक्सेस देयर शेयर्ड वर्शिप बात करेंगे, और पंचमुखी हनुमान एंड भैरव कनेक्शन कल करेंगे बात। कल को हम मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। नहीं होगा कल, चलिए आराम आराम से करेंगे, कोई भागना नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, फिर हम कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। आत्मा नमस्ते एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड कल की और आज की रिकॉर्डिंग में अभी डाल, थैंक यू थैंक सो मच। यू Thank राम राम you. जी। हनुमान जी